Very cheerful good morning to my smart learners. I hope after enjoying this break, you all are relaxed, recharged, and ready to learn through this amazing learning process. So, welcome back and start our studies. But before that, let us thank God for whatever He has given to us. So, join your hands for prayer and start. As you all know students, in our last video we started lesson number 4 of grammar book singular and plural. हमने lesson 4 start किया था in which we learnt about singulars and plurals. Singular क्या होते हैं और plural क्या होते हैं. And second thing, how can we convert singular into plural. Singular थिंग्स को, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स को हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा था. ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं, एस या ई एस लगाकर कन्वर्ट करते हैं. अब मैंने आपको बताया था एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है. सबसे पहले हमने सीखा था ई एस किस में लगाते हैं. उसके लिए आप ऐसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जो वर्ड्स इनसे एंड होते हैं, किन से, एस, डबल एस, CH, SH, X एंड O. इन लेटर्स के साथ एंड होने वाले वर्ड्स को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें ES ऐड करते हैं. और जो रिमेनिंग वर्ड्स रह जाते हैं उनको हम कैसे प्लूरल करते हैं, S लगाकर ऐड करते हैं, है ना. चलिए एक बार हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं इसके एनिमेशन के साथ. ओके, सो लेट्स सी द एनिमेशन ऑफ दिस chapter. Singular and plural. Children, let's have a look at some sentences. Ray has one kite. Mary has two kites. Here, the highlighted word kite is singular and kites is plural. Singular means one. Plural means more than one. Now let's learn about singular and plural through examples. What all does Adi have? 2 almiras, 2 bicycles, 1 sister, 5 cars, 6 books. What all does Ananya have? 5 books, 1 bicycle, 1 brother, 4 dolls. Thus, when a noun is more than one, we add s or es to it to make it plural. Singular, 1 bottle. Plural, 2 bottles. 1 biscuit, 2 biscuits. 1 hat, 3 hats. Sometimes we also add es to a singular naming word to make it plural. For example, beach, beaches, dish, dishes, church, churches,
glass, glasses. Now let's see how much we have learned. For this, we will solve the given worksheets of this chapter. This is worksheet 1. In this worksheet, we have to look at the picture and write the plurals by adding s. हमें ये पिक्चर्स दी गई हैं और हमें इसके प्लूरल्स बनाने हैं. ठीक है. Look at the first picture. What is this? This is one ball. One ball. And count these balls. 1, 2 and 3. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 balls. ठीक है. बॉल को हमने कैसे प्लूरल किया? उसमें s ऐड कर दिया. balls. 1 kite. And count these kites. 1 and 2. 2 kites हैं. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2 kites. Now see how many fingers are there? 1 finger. यहाँ पर लिखा भी है 1 finger. Count these fingers. 1 and 2. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 fingers. Okay. What is this? 1 cow. 1 cow है ना ये? Count these cows. 1 and 2. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 cows. Okay. Worksheet 2. Look inside Rekha's purse. It has some objects. Fill in the missing words, taking help from the given words and picture clues. आपको यहाँ पर एक क्लू बॉक्स दिया है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और ये आपको दिया गया है. किसका पिक्चर है ये? रेखा के पर्स का है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. जैसे टॉफीज, हैंकी, पेन, मिरर, कॉइन्स, ये सब हैं इसमें. आपने इनको रीड करना है यहाँ पर. ठीक है. और क्लू बॉक्स और पिक्चर की हेल्प से इसमें वर्ड्स फिल करने हैं. ठीक है. अब आप ध्यान रखेंगे कि डैश, ये आपको डैश है दिया गया है. डैश से पहले आपको क्या नंबर दिया गया है? वो 1 से ज़्यादा है या 1 है? अगर वो 1 से ज़्यादा है तो आप उस डैश में करेंगे प्लूरल नंबर और 1 है तो सिंगुलर नंबर. ठीक है. रेखा's पर्स हैज़ 2. अब रेखा के पर्स में 2 क्या है? यहाँ देखिए ये 2 क्या है इसके पर्स में? लिपस्टिक्स. लिपस्टिक है ना 2. तो आप यहाँ से देखेंगे लिपस्टिक्स और इसको यहाँ फिल कर देंगे. ठीक है. कॉमा के बाद है 1 डैश. अब 1 क्या है? 1 देखिए इस पिक्चर में क्या है? मिरर भी 1 है और क्या है? हैंकी भी 1 है ना. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? मिरर या हैंकी में से कोई भी एक चीज़ लिख देंगे. आप मिरर लिख दीजिए. 6 डैश. अब 6 क्या है? देखिए 6 हैं कॉइन्स. तो आप यहाँ से कॉइन्स की स्पेलिंग देखेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे. ठीक है. ऐसे ही आपने 3, 1 और 4 चीज़ें काउंट करनी है पर्स में से देखकर और यहाँ बॉक्स में से आप उनके स्पेलिंग्स नोट करेंगे, देखेंगे और उनको डैश में फिल करके इसको कंप्लीट करेंगे. ओके. और वर्कशीट 2 का ही पार्ट है ये. इसमें क्या है? सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स. आपको अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं. यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे 4 सिंगुलर नाउन्स और राइट हैंड साइड पर आप 4 प्लूरल नाउन्स लिखेंगे कोई भी. ठीक है. और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि शीप हैज़ द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. कुछ वर्ड्स बेटा ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं. ठीक है. अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपको आगे जाके ये चीज़ आएगी, इसलिए मैं आपको अभी ये चीज़ नहीं समझाऊंगी. ठीक है. आप सिर्फ ये याद रखिए जो शीप एनिमल होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहते हैं. ठीक है. देन कम्स वर्कशीट 3. In this you have to complete the paragraph by filling in the blanks. आपको क्लू बॉक्स दिए गया है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है. आपको इसमें से वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और पैराग्राफ फिल करना है. ठीक है. मैं आपको इसे
अलग करके समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए क्या वर्ड्स दिए हैं आपको। पेरेंट्स, बैग, थिंग्स, कॉइन्स, फ्रूट्स, स्टोरीज, हाउस, ग्रैंडमदर, chocolate and lab. Now see, I live in a big dash. मैं एक बड़े से डैश में रहता हूँ। किसमें? हाउस में। My dash go for work. और मेरे डैश जो हैं वो काम के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं काम पर? पेरेंट्स जाते हैं। I stay with my dash. मैं किसके पास रहता हूँ? ग्रैंडमदर के पास। माई ग्रैंडमदर हैज़ अ गोल्डन डैश। मेरी ग्रैंडमदर के पास क्या है? गोल्डन कलर का बैग है। ठीक है, इसी तरह से आप ये सारी एक्सरसाइज ऊपर क्लू बॉक्स में से देखते हुए कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चे, और स्पेलिंग्स को भी ध्यान से रीड करेंगे, अपने आप ज्वाइन करके उनको प्रैक्टिस करेंगे कैसे रीड करना है। नाउ योर एडवाइजरी वर्क, यू विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 4 इन ग्रामर बुक। आपको मैंने जितनी एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन की हैं आप वो सब अपने ग्रामर बुक में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। In our next video, we will meet with something new. Take care of yourself. Bye-bye.